Hello, student of class 11 science. Now, part 3, third part of the video, in which we are going to discuss the energy in the fluid. In the fluid, like water or the flow. Fluid, maybe the water or anything which flows. That we are going to discuss how many types of water, how many types of energy is there in the fluid. There are three types of energy is there in a energy of the fluid. There are three types of energy. Energy. Number one, kinetic energy. Kinetic energy. Number two, potential energy. And number three, pressure energy. Pressure energy. So we are going to discuss all these three types of energy which is having in a fluid or the liquid. Kinetic energy, as we know, half mv square. That's a very simple. Potential energy, that also we know, m into g into h. All the things you know. Pressure energy. What is the meaning of this pressure energy? Pressure energy is, that's a new term for you. The energy possessed by a liquid by virtue of its pressure is called pressure energy. So we have to find out its expression. The expression of kinetic energy we know, and the potential energy also we know. Now we are going to discuss the pressure energy and find its expression. Say for example, this one type of container is there, and I am drawing this here. The opening is there, having a fluid or the liquid which I have taken. Here one piston is there. Piston. Area of cross section of this particular piston is A, and P pressure is exerted. Then what happens? It is going to displace. The piston comes here, travels a distance, say the dx. Dx is the distance traveled by the piston while we are going to apply the pressure. P pressure apply किए तो dx distance ये piston आगे बढ़ा. Right? अब यही हमको क्या निकालना है? वर्क डन निकालना होगा. So therefore फोर्स एक्टिंग, वर्क डन के लिए फोर्स जरूरत है. फोर्स एक्टिंग ऑन पिस्टन, ये क्या है? पिस्टन. ऑन पिस्टन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्रेशर इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. राइट? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, सो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया. Now the work done by this force is equal to क्या हो जाएगा? Work done P into A, the force into displacement. कितना डिस्प्लेसमेंट है? dx. और हम ये लेके चल रहे हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में, से कॉस का कोई मतलब नहीं है. कॉस 0 1 होता है, इसीलिए पी ए इंटू डी एक्स. अब यहाँ पर हमको देखना a इंटू डी एक्स है क्या? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू डी एक्स. यहाँ देखिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू डी एक्स, दैट इज द वॉल्यूम. वॉल्यूम सप्रेस्ड, कितना वॉल्यूम, दैट इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? डी वी. हम तो इसीलिए लिख देंगे वर्क डन इज इक्वल टू पी डी वी. यही वर्क डन जो है, दैट इज योर प्रेशर एनर्जी. Work done means energy. So here the pressure energy is PdV.
right? So sometime in the topics to come we are going to find, हमको निकालना होगा द मास, द काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, ये टर्म हमको निकालना होगा आगे बर्नौलीज थ्योरम में। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास कितना हो जाएगा, ये एक्सप्रेशन हमको मालूम है हाफ mv², तो ये हो जाएगा हाफ v²। अगर हमको कोई पूछेगा पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास कितना होगा, तो m से डिवाइड कर दिया, पर यूनिट मास मतलब m से डिवाइड कर, तो क्या हो गया gh। कोई पूछेगा प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास, तो क्या हो जाएगा, प्रेशर एनर्जी कितना आया था, PdV बाय मास ऑफ द लिक्विड या फ्लूइड, मास ऑफ लिक्विड। हम लोग मास ऑफ द लिक्विड क्या यहाँ पर इस डायग्राम में यहाँ पर कितना मास ये अंदर सप्रेस हुआ है, तो मास निकालने के लिए क्या हमको मालूम है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अगर डेंसिटी रो है और वॉल्यूम dV है, तो हम लोग लिख सकते हैं मास इज इक्वल टू रो इंटू dV। सो PdV बाय रो dV, dV कैंसिल, तो ये क्या आ गया, P बाई रो, दैट इज द प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास। तो ये टर्म और ये टर्म इम्पॉर्टेंट टर्म है आगे वाला टॉपिक के लिए। वो टॉपिक कौन सा है, बर्नौलीज थ्योरम, very very important theorem that we are going to discuss. The Bernoulli's theorem, very important. The statement is the sum of a pressure energy, kinetic energy and potential energy per unit mass, that's important, per unit mass is always constant for an ideal fluid. Ideal fluid के लिए प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट। सो मैथमेटिकली हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। और अभी हम लोग देखें प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास P बाई रो, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास हाफ v², पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास GH, इसका सम हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यही हमको प्रूव करना होता है बर्नौलीज थ्योरम, P बाई रो प्लस हाफ v² प्लस GH इज इक्वल टू कांस्टेंट। सी द डायग्राम, we have taken a pipe of different cross section area here like that, A and B, two sections are there of the pipe, दो अलग अलग सेक्शन है। ये सेक्शन A और ये ग्राउंड लेवल या रेफरेंस लेवल है। A सेक्शन पर 4 पॉइंट P1, A1, V1, H1, क्या है ये, P1 यहाँ का प्रेशर, यहाँ का प्रेशर जिस प्रेशर से पानी जा रहा है। A1 क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। V1 क्या है, जिस स्पीड से ये इन कर रहा है। और H1 क्या है, ग्राउंड से इसका हाइट, ये पर्टिकुलर इसका मिड पॉइंट का H1 इसका हाइट है। सिमिलरली यहाँ पर B सेक्शन पर हम लोग मान लिए P2, A2, V2, H2। सिमिलरली P2 जिस प्रेशर से ये पानी या फ्लूइड निकल रहा है। A1 A2 क्या है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। V2 क्या है, जिस स्पीड से ये बाहर निकल रहा है। और H2 क्या है, ग्राउंड लेवल से हाइट। ठीक है, अब इसको हमको प्रूव करना है। एंड यू रिमेंबर इट बेस्ड, दिस बर्नौलीज प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कंजर्वेशन। और किस पर बेस्ड है ये किस पर, कैसे हम लोग इसको प्रूव करते हैं, बाय द वर्क एनर्जी थ्योरम। We have to apply work energy theorem to prove it. अब इसको प्रूव करना है। पहले तो बेसिक्स ये क्लियर हुआ, P1, A1, V1, H1, P2, A2, V2, H2 सब हम मेंशन कर देंगे, डायग्राम बना देंगे। इसके बाद अब वर्क एनर्जी थ्योरम यूज़ करेंगे, कैसे इसको प्रूव करते हैं। Now proof of this work energy theorem, थ्योरम पहले हम क्या है वो लिखेंगे, क्या है, वर्क डन
by pressure energy is equal to total increase in energy. Pressure energy, work done by the pressure energy, means work done at A section minus work done at the B section is equal to change in potential energy plus change in kinetic energy. हम वर्क डन एट ए माइनस वर्क डन एट बी क्यों किए? क्योंकि ए पर, इधर देखिए, ए पर ज़्यादा हमको प्रेशर अप्लाई करना होगा, ज़्यादा वर्क डन करना होगा, तब ये ऊपर ज़्यादा हाइट पर जाएगा, इसीलिए वर्क डन एट ए माइनस वर्क डन एट बी। तो हमको दोनों निकालना है। पहले क्या निकालेंगे? पहले वर्क डन एट ए, एट ए दैट इज़ क्या? फोर्स इनटू distance moved by fluid in 1 second। ये हो गया प्रेशर। क्या था? प्रेशर क्या था? P1 फोर्स इज इक्वल टू P1 इंटू A1 हो जाएगा फोर्स, इंटू डिस्टेंस मूव इन 1 सेकेंड। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा? स्पीड इंटू टाइम। अगर टाइम 1 सेकेंड है तो केवल स्पीड हो जाएगा, स्पीड इंटू 1, तो इसीलिए स्पीड यहाँ पर क्या हुआ? V1। सिमिलरली वर्क डन, ये यहाँ पर आया वर्क डन एट B, हम निकाल सकते हैं P2 A2 V2, वर्क डन एट A एंड वर्क डन एट B। अब यहाँ पर हम लोग एक यहाँ पर थोड़ा सा प्रीवियस नॉलेज, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से हम लोग को मालूम है A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 इज इक्वल टू मास फ्लक्स होता था m बाई रो, हम लोग लिख सकते हैं। ये क्या हुआ? m बाई रो, मास बाई डेंसिटी। मास बाई डेंसिटी क्या हो जाएगा? वॉल्यूम। ये भी तो वॉल्यूम है, A1 V1 इंटू T1 है, इसीलिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू डिस्टेंस। ये डिस्टेंस हो गया ना, डिस्टेंस इंटू 1, यहाँ डिस्टेंस है, ये वॉल्यूम, तो वही वॉल्यूम m बाई रो। अब इसका वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे, तो वर्क डन एट A क्या हो गया यहाँ पर? P1 M1 बाई रो 1। सिमिलरली वर्क डन एट B P2 M2 by rho 2, right? अगर if fluid or liquid is incompressible, means density same हो जाएगा, rho 1 is equal to rho 2 is equal to rho, तो ये टर्म हो जाएगा, क्या हो गया? P1 M बाई रो, ये P2 M बाई रो, और मास। अब यहाँ पर एक, अब आप देख रहे हैं M1 इज टू M, M2 इज टू M, हम लिख दिए। नो सोर्स और द सिंक, सो M2 इज इक्वल टू M1 इज इक्वल टू M ले लिए, क्योंकि मास, ये इस डायग्राम में यहाँ कहीं सोर्स भी नहीं है, सिंक भी नहीं है, मास जितना इन किया पूरा मास है, उतना इंटैक्ट है, इसीलिए नाउ वर्क डन एट A माइनस वर्क डन एट B, जो हमको निकालना था, ये कितना हो जाएगा? P1 M बाई रो माइनस P2 M बाई रो। ये लेफ्ट हैंड साइड, ये वाला चीज़ निकल गया, इसको दे दिए, मान लेते हैं नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। ना चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, डेल मीन्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज mgh2
माइनस एम जी एच वन। यहाँ देखिए डायग्राम में ये हाइट ज़्यादा है, यहाँ ये हाइट कम है, तो दिस माइनस ज़्यादा में से कम को पोटेंशियल एनर्जी को माइनस किया, तो अल्टीमेटली यहाँ क्या हो गया, एम इंटू जी विद इन ब्रैकेट एच टू माइनस एच वन। सिमिलरली चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ एम वी टू स्क्वायर माइनस हाफ एम वी वन स्क्वायर। अब यहाँ पर जो देखने वाली बात है, वी टू इज़ ग्रेटर देन वी वन। क्यों हुआ, यहाँ देखिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है ए वन इज़ ग्रेटर देन ए टू, ये ज़्यादा है इससे। तो अगर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में अगर ये ज़्यादा है तो हम लोग लिख सकते हैं ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या है, ए इंटू वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर ये बड़ा है तो v छोटा हो जाएगा, मीन्स v1 इज लेस देन v2, मीन्स v2 इज ग्रेटर देन v1। इसीलिए हम लोग काइनेटिक एनर्जी हाफ एम v2 स्क्वायर माइनस हाफ एम v1 स्क्वायर किए हैं, राइट। इसीलिए ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से हम ऐसा किए। अब ये सब को हम उसी इक्वेशन में, मेन इक्वेशन में पुट करेंगे, तो मेरा कितना आ जाएगा, P1। सो इक्वेशन बिकम्स, मेन इक्वेशन था वर्क एनर्जी का, P1 m बाई रो आया था, चेंज इन ये प्रेशर वर्क डन बाय द प्रेशर एनर्जी m1 P1 m बाई रो, P2 m बाई रो इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना, m g h2 माइनस h1 प्लस हाफ एम वी टू स्क्वायर माइनस हाफ एम वी वन स्क्वायर। यहाँ पर एम सब तरफ से कैंसिल हो जाएगा, ये सब कैंसिल हो जाएगा। अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, P1 बाई रो माइनस P2 बाई रो इज इक्वल टू जी H2 ब्रैकेट खोल दिए माइनस जी H1 प्लस हाफ V2 स्क्वायर माइनस हाफ V1 स्क्वायर। अब जो 1 वाला टर्म है उसको एक तरफ और 2 वाला टर्म को एक तरफ कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, P1 बाई रो, इधर 1 वाला ये है माइनस है तो इधर आ गया प्लस हो गया, इन प्लस जी H1, इधर माइनस वाला 1 वाला टर्म प्लस हाफ V1 स्क्वायर इज इक्वल टू, अब माइनस इधर माइनस था इस तरफ ले आए तो क्या हो गया, P2 बाई रो प्लस जी H2 प्लस हाफ V2 स्क्वायर। देखिए यही 1 1 1 1 2 2 2 मीन्स इन जनरल हम लोग बोल सकते हैं P बाई रो प्लस G इंटू H प्लस हाफ V स्क्वायर इज कांस्टेंट। इसी को हमको प्रूव करना था। ये आया मेरा इतना, अभी प्रूव किया बर्नौलीज थ्योरम। अब इसका सप्लीमेंट्री पार्ट क्या है, P बाई, अगर हम इसको G से डिवाइड कर रहे हैं, G इंटू रो प्लस यहाँ पर जी H बाई G प्लस V स्क्वायर बाई ट्वाइस G इज इक्वल टू कांस्टेंट बाई G, अनदर कांस्टेंट दैट इज आल्सो कांस्टेंट। अब यहाँ पर जी कैंसिल हो गया, अब यहाँ पर एक टर्म ये आया, एक ये टर्म आया, एक ये टर्म आया। इस टर्म को हम लोग बोलते हैं प्रेशर हेड, प्रेशर हेड। इस टर्म को ग्रेविटेशनल हेड, ग्रेविटेशनल हेड, और इस टर्म को बोलते हैं काइनेटिक हेड या वेलोसिटी हेड। काइनेटिक नहीं, उसको बोलते हैं वेलोसिटी हेड। तो हम एक दूसरा स्टेटमेंट फॉर आइडियल फ्लूइड,
the sum of pressure head gravitational head and velocity head is constant. ये सेकेंड फॉर्म आ गया बर्नौलीज थ्योरम का. हेड इज हैविंग द डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस. नाउ स्पेशल केस, इफ फ्लूइड is flowing in horizontal pipe, horizontal पाइप से फ्लो कर रहा है. अगर पाइप हॉरिजॉन्टल है तो क्या हो जाएगा, ये ये H1 था, ये H2 था, तो दोनों का हाइट सेम है, मीन्स H1 इज इक्वल टू H2, तो H1 माइनस H2 क्या हो जाएगा, 0. सो अल्टीमेटली वो इक्वेशन मेरा ये वाला टर्म गायब हो जाएगा. अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, P बाई रो प्लस हाफ V स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. ये टर्म आ जाएगा. इसका दूसरा फॉर्म अगर P प्लस रो को इधर क्रॉस कर देते हैं तो हाफ रो V स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. यहाँ पर V क्या है, वेलोसिटी, रो डेंसिटी, P प्रेशर. इसको बोलते हैं स्टैटिक प्रेशर. और इसको बोलते हैं डायनेमिक प्रेशर. The sum of the static pressure and dynamic pressure is constant for horizontal flow. That's a very, very important relation. And P is inversely proportional to V हो जाएगा. अगर हम इसको ऐसे करें, P अगर बढ़ाएंगे तो V घटेगा, या P डिक्रीज हो रहा है तो V इंक्रीज हो रहा है. तो इन्वर्स रिलेशन होता है प्रेशर एंड वेलोसिटी में. इसका एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है. सो यू रिमेंबर, जिस रीजन में प्रेशर कम है उस रीजन में वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगा, या जिस रीजन में प्रेशर ज़्यादा है वेलोसिटी कम. इसका उल्टा भी, अगर वेलोसिटी ज़्यादा है तो प्रेशर कम, वेलोसिटी कम है तो प्रेशर ज़्यादा. इसका एप्लीकेशन इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम. Very, very important. Next video. Okay.